Good evening, everyone. My name is Someshwar. I welcome all of you on behalf of Art of Living organization to Yoga Vasishtha Evening Study Group session. Today we are on 22nd session. नमस्ते, मैं आप सभी का आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की तरफ से योग वाशिष्ठ के अपने इवनिंग जो अपना अभ्यास सत्र जो स्टडी ग्रुप है उसका आज 22वां सत्र होने जा रहा है। इसमें सभी का स्वागत करता हूँ। तो रोज की तरह हम लोग 3 बार ओमकार का उच्चारण करके गुरु का आवाहन करके गुरु वंदना के साथ आज के सत्र की हम लोग शुरुआत करेंगे। सो लेट अस ऑल क्लोज अवर आईज। अपनी आंखें बंद कर लें। सिट कंफर्टेबली, स्पाइन इरेक्ट, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, गर्दन सीधी, शोल्डर्स रिलैक्स्ड। एक साधारण सांस अंदर लें और छोड़ दें। ऋषि नित्य प्रज्ञा जी कहते हैं भूतकाल त्याग करने योग्य है। एक गहरी लंबी सांस अंदर लें और सांस को छोड़ते छोड़ते अपने भूतकाल का त्याग करते हैं। स्वप्नवत भूतकाल को त्याग कर दें। वर्तमान क्षण में आ जाए। यह वर्तमान क्षण नया है। इस नए वर्तमान क्षण की शुरुआत ओम के नाद से करते हैं। ओम का नाद करने के लिए एक गहरी लंबी सांस अंदर ले। ब्रीथ इन फॉर द ओमकार चैंट। शरीर के कण से निकले भी ओम नाद से जो भी स्पंदने उत्पन्न हो रही है उसके प्रति सजग हो जाए। चैतन्य स्वरूप गुरु का आवाहन कर ले। Let us awaken the divinity within. आवाहनम 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 पुनः पुनः गुरु वंदना कर ले। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः
Gurur Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Gurave Namaha. Tasmai Shri Gurave Namaha. Let us pray to the divinity. गुरु से प्रार्थना कर ले, अपने मुख से निकलने वाले हर एक शब्द, हर एक वाणी, अपने सारे कर्म एवं विचार, अपने बुद्धि में जागृत होने वाला विवेक, अपने स्मृति पे तैयार हो रहे इंप्रेशंस यदि हो रहे हो, और यदि अब भी अहम का थोड़ा भाव बाकी है तो वो भी गुरु की प्रेरणा से ही प्रेरित हो, ऐसी प्रार्थना करें। मुमुक्षत्व की राह पे चलने वाले हम लोग, मुक्ति और मोक्ष की राह पे चलने वाले हम लोग, यदि बार बार यहाँ पे लौट के आना भी पड़े तो वो भी गुरु की प्रेरणा से ही प्रेरित हो, ऐसी प्रार्थना। अपने भीतर और बाहर गुरु का सानिध्य महसूस करें। Let us feel the presence of the Master Divinity within and outside. एक हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी प्यारी सी आंखें खोल सकते हो। With a gentle smile on your face, you may open your eyes. Jai Gurudev, once again, welcome to the session. So let's begin our session, today's session. So till now we have seen how the creation of this universe happens. उत्पत्ति प्रकरण में हम लोग देख रहे हैं. So what we have done, we have watched a movie, science documentary called What the Blip Do We Know. From there we received some inputs. Then we have been reading the Yoga Vasishtha. From there we have received some inputs. And all together, put together the one, whatever we have listened to Yoga Vasishtha earlier. Putting that thing together, we have kind of presented how this entire creation is actually happens. Now, yesterday also we also seen that, okay, we have seen that how this entire creation happens. And then we also seen what is the implication of that, what is the use of that knowledge in our day-to-day mundane routine life. How do we apply the Yoga Vasishtha knowledge into our day-to-day routine mundane life? So that also we addressed. We listened to all our dignitaries, all our audience, what they feel about it. They also contribute. Now what we are doing now, we are going into little bit of detailed by detail, and proceeding into this Utpatti Prakarana, the chapter number 3, the creation of this universe. So now when Vasishtha Muni started telling Prabhu Ramchandra ji that, look, whatever this Drishya Jagat, the one which is visible universe to you, it is not actually the truth. It is just like a dream. So now that is something. Then Rama asked questions like, kindly explain me all these things, how this is just a creation of a mind. Please explain me that.
No. Then Vashishta Muni explains him all these things, and then there is a day end that happens. No, us that particular day is finished. The sun is set. So Vashishta Muni take a pause. He says, "Now I will continue this discussion tomorrow." So the next day starts, and there is a very beautiful Varanan, no? The description that has been given. No, just like a literature, no? Very poetic and literature like language. They have done all the description and the Varanan of the same thing. Hmm? We'll not go into detail of that, but the second day starts. And then Vashishta Muni, before Vashishta Muni, then Ram starts. Yeah, I understand that it's all thing is just a creation of mind. This is not real. No? Kindly please explain me what is the form of this mind? Whatever you say, that mind itself is creates on orbit, but does this mind itself have any particular form? ये मन का कोई स्वरूप है क्या? कृपया करके हे मुनिवर मुझे आप बताएं. So here Vashishta Muni explains it, thus like the one which is like a inertia, the one which is like a shunya, the zero, no, which is nothingness. No? How that is? Does that have any form? Is there any form of this entire space? आकाश का कोई form है क्या? So Vashishta Muni says that similar to that, this mind also doesn't have any form. It is not a thing. Mind is not a thing that you can have a form to it. It is everywhere, just like this space is everywhere. No, hollow and empty space is everywhere. Similarly, the mind is also scattered everywhere. There is no particular form of a mind. So the same mind, no, that when we say that it's an ativahik, subtle thing, that's exactly the same thing, the one which we have our mind. No, in this body, we say that this mind contains this body. There is a mind. Similarly, the mind of the universe, no, this entire universe, the mind of this samudaya means all this whatever we see. Samashti is something that is called as the mind of that, no, that akasha, that space, no, that mind is nothing but, they say, it is that ultimate, that is that Brahmadev. We call it with different names, no, all these things. So it is that mind is that Brahmadev. And the Brahman is that ultimate, no, from which all this mind is also thought, and then the Brahm utpanna ho jata, that I am something. With all these things, it is. So it is, this is the form of a mind, that it is formless, nirakare. No, there is no akara to this. No, there is no shape for this mind. It is not just a thing. So still, just for the sake of our understanding, just for the sake from the scriptures, how it is actually mind is defined. So whatever we see, no, as a thing in front of you, that is called as Sat. And the one which is not visible to you, no, it's called Asat. No, the one which is visible and the one which is not visible. The smriti of that, the memory of that root is called as a mind. Now, the just awareness of that something is there, and just awareness of that is called as a mind here. No, हम लोग देखते हैं ना, मन अपना होता है लेकिन सटल है. No, can we actually see? No, the medical science have done all the research. They have gone into each and every part of the body. This is, I do not find this mind. That is so subtle. It is not a thing that can be, you can see it, oh, this is your mind. But for sure, we do have an experience of that. Whatever the thought comes, that comes in the mind. All these thoughts, all these things are happening in the mind. So here it is very well explained by Vashishta Muni. He is very firm about it, that he says, Lord Rama, you just understand that, you firmly understand that it is all this creation is just a creation of this mind itself. ये मन का ही है. So this man, the way this mind decides the sankalpa,
No, see, exactly similar. All the other things, form starts taking the forms. No? So this, even the thing which appears to you as this table, this computer, this Jada Deha, whatever this body is, it is all the creation of your mind itself. The mind takes a form and it just takes the same thing. Hmm? So it is just like watching a dream after dream. No, in one dream you watch another dream. No, it is just like that. This mind itself takes the form of this body. Hmm? How is this? So if you observe this when we started this Yoga Vasishtha, can we just recollect all the characters from where it all started? Huh? So we have seen these characters, like there is a Karunya, Agnivesha, Agastya Muni, then there is a Arishtanemi, then there is a Vashishta, then there is a Vishwamitra, then there is this Shuka, then there is a Bharadwaja, there is a Shuruchi. Huh? All these characters comes into picture, right? And this is a story of then Valmiki comes into picture. Now all these things, many characters we have seen. How this story after story, story after story, story after story, the story within the story, story within the story, story within the, in one story he starts telling about the other story. In that story he starts telling about that. So it is just exactly like this. Hmm? Just like at the time of death, we just start imagining certain things. एक स्वप्न के बाद, just like a dream in a dream, a dream in a dream, a dream in a dream, and this all these things are continuing like that. Oh? Similarly, does the dream have any existence? No, it is just an imagination. It's just happening. So all these things exactly is similar to that. It is just a dream after dream. We just someone is just dreaming about all these things, and we are just the characters in those dreams. No, so similarly, in a dream of someone else as a dream, we also have our own mind, and that mind is now is imagining something. Hmm? Then we create all this universe. No? Kai sare Brahma. So there is also an thing that is been given to this, is that this mind, which is a subtle, itself gets a form of the Bhautik. Bhautik means the physical one, the body one. Now it appears to be different, it appears to be physical, but in reality, if you go deeper and deeper and deeper into it, it is also just a field of energy. No? That is the latest research called string theory suggests us. So all these things, no, this mind itself, it becomes get attached, no, it gets deteriorated, it's get attached to certain things, but the same mind is capable of attaining that kaivalya, no, utkarsha kiti, that is the highest thing. No, it's so irony. The same mind takes you to all these things, the same mind get you stuck into all these things, and it is the same mind which can actually take you to the highest also. No, so that is been so. So these are all the things. No, then Vasishtha Muni here explains to make Rama and all of us with a better understanding. He explains what this self is then. Okay, if this mind is not what that ultimate is, what is it that which we do not know? No? When we see in that diagram, we say there is a some space which is an unknown to us, which we don't know. We say that I don't know this space. What that space is, that what is that don't know is. No, Vasishtha Muni is explaining about it. No, there's the same thing, when this Mahapralaya happens on this, at the same time, just like the all the trees carry its seed, that beach. No, it carries its form in that small beach. Similarly, all these things just get dissolved into that ultimate, which we do not know. What do we call it? What do we represent? Just for the sake of our understanding, we call that as Atma, we call that as a Shiva, we call it as a Brahma, we call it as a Chetana. No, the Sankhya calls that as a Purusha. No, Vedanta calls that as a Brahma. Vijnanavadi means the one who are scientific mind. No, they call it as the Kshanik Jnana, the one which is limited Jnana. Then all these things, different things given to the name, given to this something which we do not know, we cannot describe it. No,
but it is like that. So it is that same Atmadev bhi isko kya, it is the same divinity which is there within also. It's the same divinity, it's the same Chaitanya. Now it works through this. No, when I speak, it speaks through the mouth. When I do any actions, it does all the karma. No, it just, when it comes to the matter of mind, it just thinks. It's the same thing that do. No, it is the same thing one which do this action and also go through the fruits of the action. No, फल भी वही भोगता है. इसी को प्रत्येक आत्मा और देहधारी आत्मा जो यहाँ पे होता है, तो उसी को देहधारी आत्मा भी यहाँ पे गया. So all these things actually get dissolved into this. इसका सभी का लय. No, it gets dissolved into this Atma itself. So then it also, Shishtamuni also explained this, just like there is an ocean. जैसे समंदर में होता है ना, बुडबुडे उठते हैं ना, बुदबुदे वहां पे उठते हैं. So just like that in the ocean, all these waves comes and all these bubbles comes exactly in a similar fashion, exactly in a fraction of second. Just like that, all these different universes. No? There are multiple Brahman. No, we say we have our own Brahman. If you go deeper in, even your atom itself is, it's in the form of, it has its own universe. This body itself carries so many Brahman within it. No, this body itself is so miraculous. There is अपना अंदर ही, शरीर के अंदर एक अलग से ही अपना सृष्टि है. No, so many bacteria, so many thousands of nerves, कितनी सारी नाड़ियाँ, so many 50 trillion cells are there in this body itself. So how beautiful this is. No, so it says just like that in the ocean, all these bubbles come. Similarly, all these Brahman come. And what is a Buddha? It is like just bubbles. What is life of a bubble? It just dissolves itself. It's just like that in this consciousness, in this Chaitanya itself, all these things born, and then it's just dissolve. So this Deharupina, this body is there, in that also this Chaitanya Atma itself is present. And then it takes all the forms of Karmendriya, all your things that we do, work with all the Indriya, this Karmendriya, all the Jnanendriya, the one with senses, the Prana, all the Sukshma Bhute, the Avidya, Kama, Karma, and Antakarma. All these 8 kind of things are explained here. It says it's all the form of that Chaitanya only, just the Chaitanya. So even the science, that is string theory, also discover this fact, which has been said very long time ago by all our rishis, meaning that you are just a field of that energy. You are just the Chaitanya Swarup Atma. This is the Chaitanya that gives that power to the sun also. It is just like a light which glows. No? It is that Chaitanya Swarup Atma. It's very beautifully, step by step, Vasishtha Muni now has started explaining the formless forms of the mind and the Atman, which the space which is very difficult to express upon. But he's just telling that the one who are wise, the one who have been meditating, the one who are the realized one, they have experienced this Atman, the Chaitanya, like this. And that is what they share their experience, that it is extremely difficult to express it fully, but still we are just telling you something about it, whatever that we have experienced it. Very beautiful. That is where the today's session will pause here. So इसका थोड़ा हिंदी में भी अनुवाद हम लोग देख लेते, फिर चर्चा को हम लोग सत्र को चर्चा के लिए खुला कर देंगे. फिर आप भी अपना अनुभव इसके बारे में बताना, कुछ प्रश्न है तो प्रश्न भी पूछ लेना. तो हमने फिर देखा कि कैसे वशिष्ठ मुनि राम जी को एक सत्य बताते हैं कि यह दृश्य जगत जो है, ये दृश्य जगत मिथ्या है. ये दृश्य जगत एक जस्ट स्वप्न के भांति है. तो ऐसा करते करते समझाते, फिर और बहुत सारे उनको उदाहरण भी देते हैं, और फिर वो दिन वहां पे खत्म हो जाता है.
तो फिर दूसरा दिन चालू होता है, फिर राम जी वहां पे प्रश्न पूछते हैं, आपने बताया कि ये दृश्य जगत सिर्फ अपने मन का एक खेल है, ये तो एक स्वप्न के भांति है, ये तो सत्य नहीं है, अनरियल ये वर्ल्ड है। ये बात तो समझ में आ रही है, थोड़ी थोड़ी, पूरी तरह से नहीं अभी, लेकिन थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है। लेकिन फिर ये जो मन है, इसका कृपया हमें स्वरूप तो समझाइए कि कैसा यह स्वरूप है। अभी हम लोगों ने क्या किया, जब अपना उत्पत्ति प्रकरण शुरू किया, तो हमने वो व्हाट द ब्लिप डू वी नो, एक साइंस डॉक्यूमेंट्री था, उसको हमने देखा, वहां से कुछ इनपुट लिए। फिर हम लोग वशिष्ठ, योग वशिष्ठ की जो अपनी किताब है उसको पढ़ रहे हैं, वहां से हमने कुछ इनपुट लिए। और जो फिर अपने जो कुछ श्रवण करते हैं, उससे हमने कुछ इनपुट लिए। अभी हम लोग तीनों का एक संगनमत करके, तीनों का एक साथ मिला के हमने एक एक डायग्राम के रूप में, माध्यम में आपके सामने सृष्टि का ये जो उत्पत्ति का ये जो रूप है, किस तरह से हुआ था, उसको हमने देखा। फिर उसके बाद कल हमने उसका, फिर ये जो नॉलेज है, ये जो यूनिवर्स की उत्पत्ति का प्रकरण जो हमें यहाँ पे बताया गया है, इसको हम लोग प्रैक्टिकल जीवन में अपने कैसे इसको अवलंब करें, इस प्रैक्टिकल जीवन में इस ज्ञान का कैसे हम लोग अप्लाई करें, वो भी हमने देखा। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अभी थोड़ा स्टेप बाय स्टेप, जो बुक के माध्यम से जैसे वशिष्ठ मुनि आगे जा रहे, हम लोग भी धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाते हैं। तो उसमें और डिटेल में हम लोग जाए, कि जो एक संक्षिप्त रूप में हमने देखा पहले, उसी को भी हम लोग क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाते जा रहे, थोड़ा और उसमें डिटेल्स देख रहे हैं। तो फिर यहाँ पे राम जी वशिष्ठ मुनि को प्रश्न पूछते हैं, और उससे पहले फिर वो उस दिन ढल जाता है, तो वशिष्ठ मुनि वहां पे आके रुक जाते हैं, बोलते हैं कल हम लोग देखेंगे। फिर कल का जब सूर्योदय होता है, और फिर सब लोग फिर से दरबार में इकट्ठा हो जाते हैं, वहां पे फिर प्रभु रामचंद्र ये प्रश्न पूछते हैं कि ये सब बातें तो आपने बताई, ऐसे तो थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा है, लेकिन आप कृपया करके मुझे बताइए कि मन का स्वरूप होता क्या है, ये मन है क्या, क्या इसका कोई स्वरूप होता भी है क्या, कृपया मुझे मार्गदर्शन करें। तो वशिष्ठ मुनि बताते हैं, देखो रामा, ये जो अपना मन है, ये कोई वस्तु नहीं है। हाँ, ये कोई थिंग नहीं है कि मैं तुझे ऐसे मन है देखो, ये देखो, ऐसे नहीं, कोई गुलाब जामुन की तरह वस्तु नहीं है कि मैं तुम्हें दिखा दूं, कोई कार की तरह वस्तु नहीं है कि मैं तुम्हें दिखा दूं कि देखो वो कार है, गुलाब जामुन। मन तो बस वो शून्य के भांति, वो एक जस्ट एक जड़ के भांति, वो ऐसे नहीं, वो अपना उसका जस्ट निराकार है, जिस अपने स्पेस के भांति, आकाश का कोई स्वरूप होता है क्या, तो उसके भांति ही इसका कोई और छोर नहीं है, ये मन ऐसे फैला हुआ है। वो भी एक एक जस्ट एक मिथ्या रूपी, ये मन भी मिथ्या रूपी ही है। लेकिन इसका कोई स्वरूप ना होने के बावजूद भी शास्त्रों में जिस तरह से वर्णन किया गया है, उसके आधार पे मैं आपके सामने इसकी व्याख्या प्रस्तुत करता हूँ। तो क्या बताया गया कि जो प्रत्यक्ष रूप से अपने सामने जो दिखाई देता है वो, और जो अप्रत्यक्ष रूप से जो हमें दिखाई नहीं देता है वो, उसके जो अपने स्मृति के अंदर जो होता है, उसी को मन, स्मृति स्वरूप जो होता है, उसी को यहाँ पे मन कहा गया है। उसी को मतलब उसकी जो भान हमें होता है, जैसे अवेयरनेस ऑफ दैट, उसका भान ऐसे होता है ना, मन का सिर्फ भावन होता है, राइट, सिर्फ एक अवेयरनेस होता है, भान स्वरूप ही मन का यहाँ पे संकल्पना है। तो बोलते जो जो संकल्प वो मन में लाता है, उसी तरह से यह जो अतिवाहिक होता है, जो आकाश को जो अतिवाहिक शरीर है, उसी को यहाँ पे ब्रह्मदेव बताया गया। और वही मन जो अपने यहाँ पे आ जाता है, वो संकल्प कुछ करने लगता है, तो उसी से फिर बाहर जो भौतिक रूप से दिखाई देने वाली चीजें होती है, उसी का भी स्वरूप वो मन ही ले लेता है, उसी से वह उत्पन्न हो जाती है, सब संकल्पना में ही। जिस तरह से कैसे यह जो मन है, यही मनुष्य रूप भी धारण कर लेता है। इस तरह से यहाँ पे उसको हमें वशिष्ठ मुनि बताते हैं। बोलते यही जो मन है, इसी मन को अलग अलग रूप से यहाँ पे बताया गया। इसी को मन को जग कहा गया है, इसी मन को संसार कहा है, इसी मन को अविद्या भी कहा है, इसी मन को बंध भी कहा है, इसी मन को तम, जड़ होता है इसलिए तम भी कहा गया है। ऐसे अलग अलग संज्ञाओं से, अलग अलग नाम से इस मन को लोग पुकारते हैं, ज्ञानी लोग इसको पुकारते हैं। नो यही, इसी से यह दृश्य
जगत तैयार होता है नो। तो राम इसको सब सुन के बोलते ये बहुत विस्मय कारक है ना। वो अहो एक विस्मय, एक वाव की स्थिति में राम प्रभु रामचंद्र जी पहुंचे। तो ये बहुत विस्मय कारक है। मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि ये सब ऐसे होगा नो। ये ऐसे है करके विस्मय वहां पे व्यक्त करते हैं, अहो कहते हैं, विस्मय कहते हैं। तो फिर वो बोलते कि यही है जो एक जैसे कैसे ना कि एक स्वप्न के भांति, एक स्वप्न के अंदर स्वप्न, स्वप्न के अंदर दूसरा स्वप्न। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि कैसे अपनी कहानी में अलग अलग प्रकार के यहाँ पे कैरेक्टर्स आते हैं, पात्र आते हैं नो। हमने देखा वहां पे अगस्त्य मुनि आते हैं, कारुण्य आते हैं, अग्निवेश आते हैं, सुरुचि आती है, अरिष्ट नेमी आते हैं, वशिष्ठ मुनि आते हैं, विश्वामित्र आते हैं ना, भारद्वाज आते हैं, वाल्मीकि आते हैं, व्यास आते हैं, शुकदेव आते हैं। अलग अलग प्रकार के कई सारे पात्र और एक कहानी सुनाते, कहानी के अंदर दूसरी कहानी, कहानी के अंदर तीसरी कहानी, उसी कहानी के अंदर और एक कहानी। ना कैसे कहानी के अंदर कहानियों का जाल ही बुना है। एक स्वप्न के अंदर एक दूसरा स्वप्न, उस स्वप्न के अंदर तीसरा स्वप्न। इसी के भांति यह सब यूनिवर्स का क्रिएशन एक जस्ट संकल्प रूप में, एक जस्ट विचार के रूप में, इमेजिनेशन के कल्पना के रूप में इस सृष्टि की उत्पत्ति होते हुए दिखाई देती है। तो बोलते यह जो चीज है उसी को, यह मन जो है ना, यही अलग अलग चीजों में फंस के काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सम, इसमें भ्रम में पड़ता जाता, फंस जाता है। बोलते यही मन में कैपेबिलिटी है, यही मन तुम्हें तार भी सकता है, यही मन जो अपने कैवल्य की जैसे जो होती है उत्कृष्ट स्थिति को भी यही मन तुम्हें लेके जा सकता है। तो बोलते ये मन को जो स्वरूप है मैंने तो तुम्हें अभी बता दिया, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो जो डोंट ने, हमने जो डायग्राम में देखा था, नो समथिंग दैट इज डोंट नो, वी डोंट नो दैट स्पेस ना, जिसको हम लोग जानते नहीं है। लेकिन यहाँ पे वशिष्ठ मुनि उसका भी पूरा जो बोलते जो ज्ञानी है, जिन्होंने इसका अनुभव किया है, जो मैंने अपने ध्यानस्थ अवस्था में इसका अनुभव किया, उसी को तुमको इसके सामने मैं बताता हूँ। तो बोलते जैसे कोई महाप्रलय होता है और जो सारा वृक्ष एक छोटे से बीज के रूप में सब कुछ कार्य करके सब कुछ वहां पे विलय हो जाता है, वैसे ही ये सब कुछ जो दृश्य है, ये सब कुछ जो सृष्टि उसी चैतन्य में विलीन हो जाती है। उसी चैतन्य को अलग अलग नाम से यहाँ पे पुकारते हुए देखा गया है। कोई उसको आत्मा कहता है, कोई उसको शिव कहता है, ब्रह्म कहता है, चेतना कहता है, सांख्य उसे पुरुष कहता है, वेदांत उसे ब्रह्म कहता है, विज्ञानवादी बौद्ध उसे क्षणिक ज्ञान कहते हैं। ऐसे अलग अलग नामों से इनको पुकारा जाता है। वही आत्मदेव अपने अंदर भी स्थित है, उसी से हमारा ही रूप भी उसी से स्थित है, उसमें भी वही स्थित है। तो वही आत्मदेव जो है वही अपने सब मुख से बोलता है, वाणी निकलती है तो वो भाषण करता है, वही भाषण वही करता है, जो कर्म करता है वो भी वही करता है, विचार भी करने वाला वही होता है, और जो कर्म के फल भोगता है वो भी वही होता है। इसी तरह से उसको प्रज्ञात्मा या देहधारी आत्मा कहा गया है। तो बोलते यह जो आत्मा का जो स्वरूप है, उसमें जो समुद्र के भांति जैसे बुद्धे वहां पे निकलते हैं, ऐसे कई सारे ब्रह्मांड अपने आप ही क्रिएट होते रहते हैं, और अपने आप ही उसमें बुद्धि का क्या स्वरूप ही क्या है, उसमें ऐसे ही है विलीन हो जाते हैं। उसी तरह से यह सारी सृष्टि भी ऐसे ही ब्रह्मांड की तरफ ऐसे कई सारे ब्रह्मांड क्रिएट होते हैं। अपने मन के अंदर भी हम लोग अपना अपना ब्रह्मांड बना लेते हैं। अपना शरीर देखो, इस शरीर के अंदर ही कितने सारे ब्रह्मांड है, कितने सारे जीव है, सेल्स भी देखो इतने कितने सारे सेल्स है, कोशिकाएं है, 50 ट्रिलियन 50 ट्रिलियन यहाँ पे कोशिकाएं है, कितने सारे बैक्टीरियाज है। यह नगरी है ना, ये पुर है, पुरुष की है, नगरी ही है ना। गुरुदेव बताते हैं ना इसके बारे में, बोलते सच ए मिराकल, सच ए अमेजिंग थिंग। सो बोलते ऐसे कई सारे ब्रह्मांड होते हैं जो ऐसे जस्ट लाइक द समुद्र में वो वेव्स के भांति, समुद्र में वो बुद्धि के भांति तैयार होते रहते हैं, और वो चैतन्य में ही विलीन होते रहते हैं। वही चैतन्य जब हम में भी स्थित होता है तो वही चैतन्य कर्मेंद्रिय का रूप लेता है, ज्ञानेन्द्रिय का रूप लेता है, प्राण का रूप लेता है, न सूक्ष्म भूते महाभूतों का रूप लेता है, अविद्या काम न कर्म अंतकरण, इन सारे चीजों का रूप यहाँ पे यही चैतन्य लेते हुए दिखाई देता है। इस तरह के
वर्णन यहाँ पे आत्मा के बारे में, चैतन्य के बारे में वशिष्ठ मुनि करते हुए दिखाई देते हैं। तो आज का यह सत्र हम लोग यहाँ पे रोक लेते हैं। मैं रुक जाता हूँ, आप अभी शुरू हो जाइए। आप आपके मन में प्रश्न है या आपने जो पढ़ा हुआ है, आपका जो अनुभव है जीवन का, वो आप व्यक्त करना चाहते हैं या कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो यू कैन आस्क दैट। इट्स ओवर टू यू। सो आई एम कीपिंग दिस अनम्यूट। अभी अनम्यूट का मैंने खोल दिया ऑप्शन। आप अपने आप ही आराम से प्रश्न पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। ओवर टू यू। जय गुरुदेव। Yeah, first let's have some question answers. No? If they have, then I can keep my point. If you have any questions, then we can take up. Otherwise, we can open up this for the discussion. Then we'll have a free discussion. Yes, Ramaji. अच्छा, मेरा एक प्रश्न है कि मेरा देह का अंत के बाद मन क्या कहाँ जाता है? ये जो चित्त है मेरा, ये कहाँ जाता है आफ्टर द डिमाइस ऑफ? हाँ, एक्चुअली दो प्रकार के मन है तो एक ही, लेकिन अपने समझने के लिए यहाँ पे बताया गया। एक तो होता है कि जो अपना व्यक्तिगत मन को बोलते हैं ना, मैं जो सोच रहा हूँ वही आप सोच रहे हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं, अलग अलग हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे व्यक्तिगत मन कहा गया है ना। और दूसरा जो मन कहा गया है वो समष्टि, माने यह जो पूरी सृष्टि, उसका भी तो मन, वो मन कहा है। तो जो अपना जो मन है वो व्यक्तिगत मन हो गया, और जो सृष्टि का जो मन है वो समष्टि का, समष्टि का जो मन है उसी को यहाँ पे ब्रह्मदेव कहा गया। तो ये दो प्रकार के मन यहाँ पे बताए गए। तो अभी यह मन जो होता है, हम लोग अभी प्रश्न पूछ रहे कि भाई अपना जो मन होता है, जब अपना डेथ होता है, फॉर एग्जाम्पल मृत्यु हो जाता है, फिर ये मन कहाँ चला जाता है? शरीर तो है जो पंच महाभूतों से बना हुआ दिखता है, वो तो पंच महाभूतों में विलीन हो जाता है, लेकिन फिर ये मन जाता कहाँ है? तो यह मन भी वो ब्रह्मदेव का जो समष्टि का जो मन है उसमें विलीन हो जाता है। मन माने कोई वस्तु नहीं है कि वो कहीं अपीयर या डिसअपियर हो जाएगी नो। मन तो बस वो एक सटल है, बहुत ही सटल है ना। तो वो दिखने वाली चीज तो है नहीं कि गायब हो जाती है नो। वो तो फिर वो उसी ब्रह्मदेव का जो मन है, समष्टि का मन है, वो उसमें, और फिर ब्रह्मदेव का मन भी विलीन होके वो चैतन्य स्वरूप में, जो हम लोग जानते नहीं है क्या होता है, बट हम लोग जैसे उसका अनुभव करते हैं उसमें वो भी विलीन हो जाता है। तो ऐसे कई सारे हम लोग जो बोलते हैं एक समष्टि बोलते हैं, वो ऐसे कई सारे ब्रह्मांड होते हैं। जैसे अपना व्यक्तिगत मन होता है, जैसे कई सारे ब्रह्मांड होते हैं, और ऐसे कई सारे ब्रह्मांड में कई सारे ब्रह्मदेव होते हैं, और कई सारे ब्रह्मदेव का वो मन होता है, और वो अपना अपना ब्रह्मांड अपना अपना निर्माण करते रहते हैं। ये कोई एक छोटी सी एक चीज नहीं है, ये बस ऐसे निरंतर चलने वाली यह प्रक्रिया है। अपने आप ही उसमें उत्पन्न होते रहता है, अपने आप ही डिजॉल्व होता है। तो हम लोग तो अभी तक वो अपने शरीर को ना इतना अभी तक पूरा अभी अटैच ना, तो हम लोग जब भी ये सोचते हैं तो हम लोग अपने ही बारे में सोचते हैं अभी। दैट्स ओके, देयर इज नथिंग रॉन्ग और राइट, ये ठीक है। लेकिन बोलते कि देखो ना बाहर आप, मैं क्या अकेला ही हूँ क्या? कितना सारा स्पीशीज है, कितने सारे लोग हैं, कितने सारी ये अपना सोलर सिस्टम है, कितनी सारी सोलर सिस्टम्स है, एक ही आकाश गंगा है, कितनी सारी आकाश गंगाएं। तो इसका अनंत रूप देखो ना, विराट रूप देखो। तो बोलते ये छोटे से छोटे कण कण में भी मैं ही हूँ, चैतन्य हूँ, और ये विराट से विराट ना, उसमें भी मैं ही हूँ, वही मैं चैतन्य स्वरूप हूँ। तो इसका अनुभव हमें होने लगता है। ये बात है, तो उसी में विलीन हो जाता है। यस रमा जी, अनम्यूट कर लिया आपने आपको, आप कर सकते हैं अनम्यूट। और एक है, मुझे थोड़ा डिफरेंस समझे, परा प्रकृति एंड अपरा प्रकृति, पुरुष और प्रकृति। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पुरुष एंड प्रकृति? पुरुष तो सांख्य योग में जो कहा गया है कि पुरुष, हाँ,
और प्रकृति मतलब जो दृश्य है। हाँ जी, हाँ। तो यहाँ पे जो अपना पुरुष जो कहा है वही अपना, जिसको हम लोग अलग अलग नाम से पुकारते हैं नो, वो जो पुरुष माने शिव, नो वो शिव स्वरूप है। अभी शिव कोई वस्तु नहीं है, शिव माने शिव तत्व है, शिव इज दैट कॉन्शियसनेस, सो दैट पुरुष इज रेफर्ड टू एज दैट शिव। उसी को अलग अलग नाम से बताया गया, वही पुरुष है, वही शिव है, वही ब्रह्म है, वही चैतन्य है, वही आत्मा है, वही सब कुछ वही है। उसकी जो शक्ति है, शक्ति द एनर्जी, शक्ति, उसको यहाँ पे प्रकृति कहा गया। तो शिव एक है और शिव की जो शक्ति है वही आपकी प्रकृति है। वही प्रकृति फिर वो सब माया ये सब है ना, इसलिए जब शिव जी को या इसमें डिपिक्ट करते तो अर्धनारी नटेश्वर के रूप में उनको डिपिक्ट करते हैं। तो माने क्या है, ये जो प्रकृति है और ये जो शक्ति है और जो शिव है वो अलग अलग नहीं है, वो शिव की ही शक्ति प्रकृति है। तो इसलिए बोलते मतलब हाँ, पुरुष और प्रकृति का मिलन से ब्रह्मांड तैयार हुआ है। हाँ, एक ही है। पुरुष की जो शक्ति है वही शिव की ही शक्ति है। हम लोग एक्चुअली क्या समझ रहे पता है क्या, अलग समझ रहे। वो शिव जो है ना, वो शिव का ही अंदर जाके देखिए ना, अपने को क्या लगता है ना, ये शरीर है, इसमें स्मॉलेस्ट पार्टिकल साइंस की तरफ से देखते तो क्या दिखता है, एटम दिखता है ना, एटम एक अणु दिखता है। एटम के अंदर घुस जाए तो क्या दिखता है, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन दिखते हैं, और एक न्यूक्लियस होता है। हाँ, और न्यूक्लियस के आजू बाजू में ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन डांस करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, स्थिर नहीं है, कंटिन्यूअसली घूम रहे। देखो ये सोलर भी सिस्टम देखो, ये सारे कैसे तरह घूम रहे हैं। इवन सोलर सिस्टम भी जो है वो भी पूरा का पूरा सोलर सिस्टम भी किसी के और प्रति कहीं पे घूम रहा है। इट्स कंप्लीटली फ्री, इट्स कंप्लीटली मूविंग थिंग। जड़ नहीं दिखता, जड़ है लेकिन है जड़ नहीं। अच्छा, साइंस तो और भी थोड़ा आगे गया, डिस्कवर किया कि अंदर घुस गया न्यूक्लियस के अंदर। अभी तो ना न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर पावर, एटम बॉम्ब वगैरह जो बनने से न्यूक्लियस में घुस के न्यूक्लियर फ्यूजन कर दिया। क्या पाया उन्होंने, न्यूक्लियस के अंदर घुस के देखा तो ट्रेमेंडस एनर्जी, शक्ति है, ट्रेमेंडस शक्ति है वहां पे। और वो शक्ति क्या होती है, जब न्यूक्लियस को ब्रेक किया जाता है तो वो होते हैं और वो शक्ति किस में होती है उपलब्ध, कहते हैं कि वहां पे वो स्ट्रिंग्स ऑफ एनर्जीज का एक जस्ट एनर्जी होता है। तो वही जो चैतन्य है उसी की शक्ति है, तो वो शक्ति स्वरूप ही है। उन लोग क्या कर रहे हैं, उसी प्रकृति से ये सब कुछ बना है, राइट। प्रकृति कह रहे उसी को प्रकृति शक्ति है, शिव की ही शक्ति है, यहाँ पे प्रकृति के रूप में कहा गया है। तो शिव और अलग अलग नहीं है, और एक सेम थिंग दिखता है, बोलते अलग अलग है, जस्ट हमारे समझने के लिए अलग अलग बोला है, बट इन रियलिटी है ही नहीं अलग। भैया एक दिन जो ईश्वर कणा को लिए हम लोग को समझाइएगा ना, व्हाट इज ईश्वर कणा लेके जो रिसर्च अभी चल रहा है, ईश्वर कणा जो व्हाट इज द स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ, व्हाट इज ईश्वर कणा, व्हाट इज ईश्वर कणा। देखो जो हमारा जो रिसर्च हुआ ना, गॉड्स पार्टिकल, वही यस गॉड पार्टिकल उनको भी नहीं पता है। ये जस्ट बिकॉज दे डोंट नो, जस्ट बिकॉज साइंस हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग। हमने जो साइंस डॉक्यूमेंट्री देखी उसमें तो वो देखा ना, व्हाट इज दैट ही सेड। द मोर आई गॉट डीपर एंड डीपर इनटू दिस, ये कितना जानता नहीं हूँ, बहुत कुछ जानता नहीं हूँ। इतना सब जानने के बाद, इतना सब रिसर्च करने के बाद क्या बोल रहे, मैं नहीं जानता उसको पार्टिकल को, वो अव्यक्त है। और हम लोग भी यहाँ पे वशिष्ठ मुनि भी यही बोल रहे हैं, हम लोग भी यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि जो है जानते नहीं है, जानने की चीज नहीं है। जानोगे, जानना बुद्धि के लेवल पे जानना, वो तो बुद्धि के परे है, निराकार है, पहुंच नहीं पाएगी उसके पास, जान ही नहीं सकते। तभी उसने गॉड पार्टिकल बोल के छोड़ दिया उन्होंने, उनको भी नहीं मिला। दे आल्सो अच्छा, जानने की
जानने के योग्य नहीं है, क्या वो फील करने की भी योग्य नहीं है, अनुभव करने की भी योग्य नहीं है? अनुभव करने योग्य है, तभी तो ऋषि मुनि ने ध्यान करते हुए उसको अनुभव किया, तभी तो ना हाँ। उसका किया, है ना? उसको तो शेयर नहीं कर सकते मैं किसी के साथ, वो जो वर्णन मेरा अनुभव है। वर्णन करते हैं, और वो भी बोलते हैं ये जो कि मैं अनुभव वर्णन कर रहा हूँ वो भी बहुत सीमित Yes. कि प्यार को एक्सप्लेन करो, कर पाते हो क्या प्यार को एक्सप्लेन? हाँ, प्यार को हम लोग एक्सप्लेन कर पाते हैं क्या? नहीं कर पाते। फीलिंग को तो ठीक से हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते, प्यार को कहाँ से करेंगे? उसके बड़े भी जितने मिलियन टाइम भक्ति होती है, भक्ति को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? उसके बावजूद भी बोलते हैं कि पराशर ने उसको ऐसा कहा था, गर्ग ने उसको ऐसा कहा था, नो। फिर नारद मुनि कहते फिर मैं भी अपना एक ओपिनियन रखता हूँ, ठीक है ना, जस्ट ओपिनियन। वो बहुत क्लेम नहीं करे, बहुत रिजिड तरीके से नहीं बोल रहे। यहाँ पे ये जो ऋषि मुनि जो है, इन्होंने भी परमात्मा के बारे में, कॉन्शियसनेस के बारे में जो भी बोला है, दे आर नॉट एट ऑल रिजिड। वो बोलते हम लोग जानते ही नहीं उसको। पहले तो बोल दिया, क्लियर कर बोल दिया जानते नहीं, बट बोलते हम लोग जब ध्यानस्थ हो जाते हैं उसके स्वरूप को हम लोग जस्ट एक अनुभव करते हैं, वो भी पूरी तरह से नहीं, जस्ट एक अनुभव करते हैं और उस अनुभव का वर्णन करते हैं। कोई क्लेम नहीं करते कि ऐसा ही है, बोलते नहीं नहीं तुम्हारा अनुभव अलग हो सकता है, इट्स ओके, इस तरह से बोलते। जानते नहीं, कोई नहीं जानता, वो जानने की चीज ही नहीं है, जानेंगे कैसे उसको? ये तो मतलब ये समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो इसको मान लो, श्रद्धा रख लो कि मैं नहीं जानता। श्रद्धा कहाँ पे रखी जाती है? कोई चीज मेरे को जान लिया तो श्रद्धा की जरूरत नहीं है। ये पेन है, ये बताने के लिए श्रद्धा की जरूरत नहीं है। पेन दिखता है, पेन है, बट बोलूंगा ये पेन नहीं है, ये तो कुछ और है, आत्मा है, अलग है, बोलेगा अरे कैसे, समझ में नहीं आता, तो फिर श्रद्धा रखो, बोलते मान लो। बिकॉज श्रद्धा की जरूरत पड़ती ही तब है जब हम लोग जानते नहीं, अननोन चीज के ऊपर श्रद्धा की जरूरत होती है, फेथ वहां पे ही आता है। इसलिए गुरुदेव बोलते कुछ जान के चलो, कुछ मान के चलो, सर्टेन थिंग्स यू हैव टू एक्सेप्ट इट। कोई और तरीका नहीं है, देयर इज नो अदर वे। तरीका यही है कि इस ज्ञान को बार बार करो, एंड देन एक लेवल ऐसा आ ही जाएगा कि जब ये सारे बंधन टूट जाएंगे, बंधन एक्चुअली है ही नहीं, जो मल है, जो अज्ञान है, वो निकल जाएगा, तो फिर वो जो आत्मा है, वो जो स्वरूप है प्रकाश, वो बहुत ऑब्वियस हो जाएगा, वो दिखने लगेगा, वो फैलेगा, उसका स्वरूप ही है फैलना, वो आनंद फैलेगा। तब समझ लेना कि हाँ हो गया, हो ही गया बस। कभी भी हो सकता है, किसी के भी जीवन में कभी भी हो सकता है, बस मान लो कि हो गया, गुरु के सानिध्य में आ गए, वो बैठे हैं ना अपने साथ, उन्होंने बोला ना, मान लो बस हो ही गए मुक्त अभी। ठीक है। हाँ रमा जी, अनम्यूट कर ले। I am satisfied, भैया। हाँ, कुछ प्रश्न है तो पूछ ले, नहीं तो हम लोग चर्चा सत्र को खुला कर देंगे, फिर आप खुद ही बात कर सकते हैं। ठीक, we'll begin with our session. चर्चा सत्र को खुला कर देते। संगीता जी, would you like to say a few things? So good evening, everyone. Jai Gurudev to all of you. Nice being once again together, you know. और बड़ा अच्छा लगता है। देखिए ना, वर्षा जी की स्माइल कितनी ब्यूटीफुल, एकदम ऐसे लॉन्ग स्माइल आ गई है ना, कितना प्यारा लगता है ना। रमा जी, जय गुरुदेव। Yes, others can also on their camera, you know. It looks so beautiful. Yesterday we have a good session, all of you. Agree? है सब thrill में एकदम. Yes. Oh wow. Yes. Yes. So Shalaka ji, we would love to see you. Savita ji, everybody. So nice. Kusum ji. All of you can on your videos. Yes. Good. That's so amazing seeing all of you. है ना, एक अपना एक कनेक्शन, यू नो, कनेक्शन लग जाता है सबसे, बिल्कुल, है ना, प्यारा लगता है बड़ा। So nice. Yes. Wow. What to say, you know, I don't know. Today I'm just in that state of mind, you know. Really.
no? Beyond your emotions, beyond your feelings. I was just hearing, how can you be alone? In fact, I have opened a page for emotions, but I would really, like to say on something which I was just hearing now, see the power of being alone, that is so wonderful. We being individual. What is individual means? Where you cannot divide yourself anymore. That is your being. That is you just be. And what is the difference between that? Just a creature and a human being. What is the difference? ऐसा बताया गया है कि there are two lines are there. Two lines are drawn. Every creature just goes up and down, means birth and death, birth and death, birth and death. That it is. But for human being, there is a bottom line, but there is no top line. It means the human being can evolve itself to the unlimited. उसके लिए ऊपर की कोई लाइन ही नहीं है. He can evolve. And that evolution, that evolve, he can do it just now, right now. It can be that also. It can take him some time also. So that's so good, no? Isn't it? And there is no compulsive actions in that, मतलब compulsive नहीं है उसके लिए कोई भी काम करना, action करना, because he's just being. And if you imagine, not even imagine, if you just experience that, I really tell you, it will give you a total different feeling to just be there. So I was just, hearing that. So it was so amazing. So I was thinking, कि क्या बोलना है, अभी क्या बोलना है. चलो emotions के बारे में बोलते हैं, but नहीं, मैंने कहा कि चलो यही बता देते हैं कि, the power of being alone, that is you're within yourself. That is so amazing. It leads you from all that what we are hearing, the freedom from everything. Just to go into yourself. Yes, you walk alone. Looks nice, no? So, I just had a thought, if you would really love to go very near, thoda sa chalna hai, so you can just walk alone. It's okay. But if you want to go for a long journey, then you walk together. Then you need a company. But then in that also, you have to be alone. The company will be there. It will be going alone. That is the thing. But with the company. So the journey, मजा आ जाता है ना, कहाँ लंबे जाना है, सफर पे जाना है, सब मिलते हैं, साथ में बैठते हैं, बातें करते हैं, ये करते हैं, शेयर करते हैं, थोड़ी देर में अपना एड्रेस बता देते हैं, थोड़ी देर में फोन नंबर्स भी चेंज कर देते हैं. लुक सो नाइस, नो, है ना? और जब तक की जर्नी, जब तक डेस्टिनेशन आ जाए, तब तक क्या हो जाता है, इतनी फ्रेंडशिप हो जाती है कि ओ प्लीज कम एंड बी विद मी, बी इन माय सिटी, बी कम टू मी, ऐसे भी हो जाता है, रिलेशनशिप भी बन जाता है. बट देन स्टिल जब जर्नी का डेस्टिनेशन आता है, तो हर एक अपने स्टेशन पे उतर जाता है. Isn't it? That it is, that power. And one more thing was there, which I just noted down. Yeah, that I told you about the evolution. And, many people, I just heard that also, that many people, they come together for their needs. That is, अपनी जरूरतें पूरे करने के लिए हम साथ में कभी मिलते हैं, कभी कभी हम मिलते हैं अपना पर्पस सॉल्व करने के लिए, a common purpose, a vision, a goal, and we all go together. That is what we are doing here, perhaps. But then some of them, they just come to eat and drink and all, be merry, that also partying together, that is also okay. So there are different ways where people come and meet together, but still everybody from within, if you are in your own self, then you are happy. Isn't it? Contentment. So that contentment is so great, I tell you, that santosha that we have got. Those 4 pillars of knowledge, again, it comes up. So bind yourself with that only. Keep on asking the questions, who am I? Why am I here? So these questions, when you keep on asking, it takes you further ahead. You don't get yourself stuck anywhere. So every time you evolve there. So that is the point. So everybody's come here to be that individual. So let's all be individual, but still we come together, walk together, we go together in that journey. Yeah. So that will be more rewarding to us. Yes. Thank you.
Any questions on that? I can answer it. Yes, Shalaka, would you like to say something? Was that too deep for everybody? I love to hear all of you. Oh, that's amazing. That's so amazing. We also love you. Seeing you, smiling all the time. It's so beautiful. दीदी आपका बात सुन के एक ही गाना मुझे याद आ रही है. बोलिए ना. टैगोर का एक गाना याद आ रही है, बंगाली में है, आप लोग सब सुन चुके हैं. যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা चलो रे. मतलब इंडिविजुअली जाने का बात ही होता है. Very nice, very nice, very nice. So it all matters. Go alone. It all matters. Who is the company with you? That also matters. कि किसकी कंपनी है तुम्हारे साथ जो तुम्हें ऊपर आगे लेके जा रहा है कि न्यूसेस क्रिएट कर रहा है, वो भी है. तो सब बातें हैं, सब बातें देखते देखते, पर तो भी अपने मस्ती में चलना है. दैट इज द पॉइंट. अकेले चलने का मतलब ऐसा नहीं अकेले भाग के किधर जाना, बट अपनी मस्ती में चलना. दैट इज द पॉइंट. या गुड. रहेंगे अपने मस्ती में, झूमते चलते चलेंगे, है ना. आज मैं ऊपर, आसमान नीचे. सीरियस प्लेटफॉर्म बहुत जॉयफुल कर देते हो आप. आई नो सोमेश्वर जी इतना प्योर ज्ञान बताते हैं, थॉट्स, लाइफ्स, मन, ये वो. तो मुझे लगता है अगर इतना सब सुनने के बाद अगर मैं हंसे नहीं तो जरा कुछ थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा. So I always मतलब बोलने की. सचिन जी, सोमेश्वर जी, आप all we are all like flowers. Everybody will have their own fragrance. A rose will have its own, a chameli will have its own. Same thing, no? Isn't it? So we all have our own fragrance and we should spread that, right? Of course. That is, of course, again coming back to your originality. Yes. Right. Thank you all of you for listening to me. Yes, Sanjay ji, what would you like to? Sanjay ji बड़े पोस्टर बड़ा अच्छा लगाते हैं गुरुदेव का. Yes, Sachin ji, Sanjay ji is not there, I suppose. Sachin ji, over to you, or over to you, Someshwar ji. Please go ahead. Thank you. Very nice sharing by Sangeeta ji. Yes, it is yet with the world. सबके साथ रहते हुए भी established in the self. Being with the self. That is very important. It's okay to be alone. There is no need to be lonely. अकेले रहना ठीक है, अकेलापन नहीं होना चाहिए. अकेलापन आपको डिप्रेशन में लेके जाएगा. अकेला होना चाहिए. पूरी सृष्टि में रहने के बावजूद भी I am there. No, it is that space that I love all. Everything is there, but I love myself. I just love only myself. मैं सिर्फ अपने आप से ही प्रेम करता हूँ. I love just myself. But this sentence is not understood properly. कई सारे divorce हो जाएंगे. Somebody say I love only myself. हाँ, तो वो नहीं है. अष्टावक्र गीता थोड़ा सुनना पड़ेगा इसके लिए. Activities होनी चाहिए, but from within. That is a state of your mind. That's what I said first. It is a state of your mind. एक्टिविटीज तो बाहर से सब करेंगे ना, सबको पूछेंगे, करेंगे, अपनी ड्यूटीज भी करेंगे, जो भी करना है सब करते रहेंगे, बट इट इज द स्टेट ऑफ योर माइंड. Yes, I agree with you. Let's hear out other audience. Sachin ji, would you like to say something? Actually, आज आपने और संगीता जी ने इतना अच्छा बोल दिया है. I don't have anything to say today. I would love to hear from others. What their experience is. That's absolutely fine. वर्षा, आपको कुछ कहना है? सगळ्यांचं म्हणजे इतकं अजब रसन झालंय ना, आणि संगीता दीदींचा तर फ्लेवर फार सुंदर आहे. एकदम मोकळ्या हसल्या ना, तर त्यामुळं असं ताण वाटत नाही. ह्या स्टडी ग्रुपचं ताण वाटत नाही. ऍट इझी सगळं नॉलेज समजतंय.
जय गुरुदेव संगीताजी आणि ऑल ऑफ यू. थँक्यू सो मच वर्षाताई. हा, शलाकाजी. म्हणजे माझ्याकडे शब्दच नाहीयेत बोलण्याला. म्हणजे रोज एक एक सेशन इतकं मस्त आणि खूप भारी होते, खूप भारी वाटते. मला एक्सप्रेस नाही करता येत काय वाटते ते. आणि माझ्या मनात मी काल म्हणाले त्याप्रमाणे प्रश्न येतो आणि उत्तर सचिनजी देतात किंवा संगीताजी देतात किंवा तुमच्याकडून मिळतं, पण उत्तर मिळतंय. खूप छान, खूप मस्त. संपूच नाही असं वाटतंय. व्हेरी नाईस. हा बोला अनघाताई. छान झालं सेशन. प्रश्न नाहीये काही. व्हेरी गुड. तुम्ही आणि संगीताताईंनी चांगलं समजावलं. चैतन्य आणि एकटे पण समष्टी पण दोन्ही छान वाटलं. संजयजी हा बोला. एक सुंदर विचार आहे. स्वप्नात स्वप्न एक कसं असेल, एक माझा एक व्ह्यू मानतो या बाबतीत. एक स्वप्न कोण, आता आपण इथं सगळे उभं बसलेलो आहोत, ऐकतो, हे एक स्वप्न. त्यानंतर माझ्या विचारातले स्वप्न ते भिन्न आहेत आणि त्यातले त्यात तुमचे सुद्धा, आता सोमेश्वरजी किंवा संगीताजी किंवा सचिनजी किंवा कोणी पण असतील, ते प्रत्येकाची स्वप्न परत वेगळे आहेत. हे विचाराचे भिन्न प्रकार, परत ह्या स्वप्नामध्ये स्वप्न, हे किती सुंदर आहे ना. लिंक होताना आपलं स्वप्न आपण आहोत हेच एक स्वप्न आहे आणि त्यामध्ये प्रत्येकाचं आपलं आपलं स्वप्न ज्यामध्ये होतं ते स्वप्नातले स्वप्न ही लिंक लागते त्यात. असं वाटतंय की हा व्ह्यू पण असू शकेल की हे स्वप्नातली स्वप्न या पद्धतीनेच असू शकतील ना. हा संजयजी प्रश्न आहे का कॉन्ट्रीब्युशन आहे? प्रश्न कॉन्ट्रीब्युशन पण आहे आणि आपल्यालाही एकमेकांना विचार करून यावरती बोलायला मिळेल. कारण स्वप्नातलं स्वप्न, आता आपण पद्मराजाची कहाणी ऐकली आणि लीलावतीची, ते एका ठिकाणी त्यांचा मृत्यू होतोय आणि दुसरीकडे त्यांचं परत एक विश्व निर्माण होतं. मग अशा याच्यात लीलावतीचं स्वप्न जे आपण पर्टिक्युलर पाहिलं होतं, त्यानंतर ती परत नवीन आयुष्यामध्ये परत एक नवीन त्यांचं जीवन परत समोर आलं. तर यात पद्मराजाचं स्वप्न भिन्न झालं, त्यात लीलावतीचं स्वप्न वेगळं झालं, त्यात सरस्वतीचं साक्षात्कार परत वेगळं झालं. म्हणजे प्रत्येक व्यक्तीच्या आपल्या विचारानुसार स्वप्नाची एक नवीन लय तयार होते आणि ते स्वप्न परत भिन्न होतं. म्हणजे प्रत्येक व्यक्तीचा विचार हा एक नवीन स्वप्नाची निर्मिती करतो, जे एक दुसऱ्यापासून भिन्न राहील. अगदी बरोबर. तर आपण आता सध्या जे बघितलं ना की आपली सुरुवात जी झाली ते आपण एक मूवीनी केली. मूवीवर आपण त्यातनं इनपुट घेतले. त्याच्यानंतर आपण योग वशिष्ठचं वाचन सुरू केलं, त्याच्यातनं इनपुट घेतले आणि आपण जे श्रवण केलेलं, याच्या आधी पण सेशन्स आपण यतीन वगैरे यांच्याकडनं ऐकलेले, ते जे श्रवण झालं त्याच्यामधनं, त्याच्या बेसिसवर आपण एक डायग्राम प्रिपेअर केली, ते तुमच्या समोर सादर केली. आणि मग ते डायग्राम बघून त्याच्यातनं आपण एक सृष्टीची उत्पत्ती कशी झाली ते समजून घेतलं. आता आपण काय करतोय, थोडं स्टेप बाय स्टेप आणखी जास्त थोडं धीरे धीरे डिटेल्स मध्ये जातोय, थोडा आतमध्ये शिरतोय की एक्झॅक्टली काय काय डिटेल्स सांगितले गेले. तर आपण अजून सध्या ते वैशिष्ट्य दुसऱ्या दिवसावर आलेले आहेत आणि जिथे ते सगळे एक्सप्लेन करतायत. अजून आपली पद्मराजाची जी गोष्ट आहे किंवा लीला सरस्वतीचं जे आख्यान आहे ते आपलं अजून इव्हिनिंग सत्रामध्ये आपण अजून टच नाही केलंय. तर ते जेव्हा येईल तेव्हा आपण डिटेल मध्ये याच्यावर चर्चा करूया. आताही बोलू शकतो कारण की आपण ते ऐकलेलं आहे, वाचलेलं आहे, तर येईल. पण ते जेव्हा ऍक्च्युअली येईल ना इव्हिनिंग सत्रामध्ये, ते डिटेल मध्ये आपण त्याच्यावर चर्चा नक्की करू शकतो. पण हे असंच आहे ऍक्च्युअली ना की कोणीतरी कधीतरी त्याच्या मनामध्ये आलं की मी कोणीतरी आहे. ते कोणाच्या मनामध्ये आलं आपण त्याला जाणत नाही. वी डोंट नो व्हॉट दॅट इज. आणि त्यांनीच त्याच्या अहंकारामुळे मी कोणीतरी आहे असं समजून घेतलं आणि त्याच्यातनं सगळं चालू केलं, सगळं हे जे आहे चालू आहे. आणि मग त्याच्यामध्ये त्यांनी जे विचार केले त्याच्यामध्ये त्याच्या विचारामध्ये जे सृष्टी निर्माण झाली ती एक विशिष्ट पद्धतीने कार्य करते.
त्याला त्याचे नियम आहे, त्यालाच आपण नियती म्हणतो. आणि त्या नियमानुसार ती नियती कार्य करते आहे. त्या नियतीचाच एक हिस्सा आपल्याला पण इमॅजिन केलं गेलं. आणि मग आता आपल्याला ते इमॅजिन करून आपल्याला पण त्या पॉवर्स दिला गेला की बाबा तुला तुझ्यामध्ये पण इमॅजिन करण्याच्या पात्रता आहेत, तू पण इमॅजिन कर. आणि मग आपण पण इमॅजिनेशन करणं सुरू केलं. आणि मग आपल्या इमॅजिनेशन मधनं आपलं ब्रह्मांड आपलंच बघतो ना आपण, की जे परसेप्शन जे असतं आपलं, की मी एक गोष्ट समजा आपल्याला दिसली, 10 जणांना ती गोष्ट दाखवली तर 10 जणांना विचारा त्यांना की तुम्ही काय बघितलं. जरुरी नाही की 10 जण त्याला एकच म्हणतील. देर इज नो, इट्स नॉट ऍब्सोल्यूट नेसेसिटी की 10चे 10 त्या गोष्टीला त्याच पद्धतीने परसीव करेल. तो एंगल मैटर करेल. सिंपल है. इंजीनियरिंग या आपने जिसने भी आईटीआई वगैरह इसे कुछ भी थोड़ा बहुत टेक्निकल ड्राइंग जिसने पढ़ा होगा तो उसको क्या बोलते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, उसका साइड व्यू होता है, एक फ्रंट व्यू होता है और एक टॉप व्यू होता है. अभी जो क्यूब है वो क्यूब को किसी ने टॉप में से देखेगा क्या बोलेगा, क्यूब क्या है, बोलेगा स्क्वायर है, राइट है ना. कुछ और चीज बोल दिया, स्फीयर है, अपना बॉल है, उसको बोल दिया कि तुम देखो किसी भी डायरेक्शन से, कैसे बोलेगा, बोलते इट्स जस्ट अ सर्कल. बट सर्कल है क्या एक्चुअली. सेम थिंग हैपेंड विथ आवर अर्थ आल्सो. क्या बोला अर्थ के बारे में, इट्स अ फ्लैट, सपाट है बोलते हैं, लेकिन है क्या सपाट, नहीं है, स्पेरिकल है. तो आइडिया क्या है ना, जो परसीव हम लोग कर रहे हैं ना, वो हर एक का परसेप्शन जो है ना अलग अलग हो सकता है. अभी यहाँ पे बोलो तो क्या है, अरे बाहर देखा तो रात है, उधर यूएस में बोलेंगे अरे दिन है. कौन गलत है कौन सही है, दोनों का परसेप्शन सही या गलत है क्या, नहीं, दोनों का परसेप्शन अलग अलग है, उसके बावजूद भी सत्य है. एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है तब भी सत्य है. और दिन और रात नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, वो भी सत्य है. देखो कितना कॉन्ट्राडिक्शन है, और तीनों स्टेटमेंट सही है. दिन और रात होती नहीं है, ये भी सत्य है. यहाँ पे रात है, ये भी सत्य है. वहां पे दिन है, ये भी सत्य है. तीनों के तीनों सत्य होने के बावजूद भी एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करें. यही बोला गया है कि परसेप्शन, अपना जो चीजों को हम लोग परसीव कर रहे हैं ना चीजों को, ये परसेप्शन अलग अलग हो सकता है. इसलिए बोला हर किसी का ब्रह्मांड अलग अलग होता है. तो कोई जो था जिसने वो ब्रह्मांड देख लिया, उसने अपने मन से शक्ति से इसको परसीव कर लिया, इस जगत को इस तरह से, उस जगत में ही हम लोग एक कैरेक्टर आ गए, हमने अपने कैरेक्टर में अपने को भी वो पावर दे दी, हम लोग भी अपना परसीव कर रहे हैं सब चीजों को. अलग अलग लोग अलग अलग तरह से परसीव कर रहे हैं. तो बिल्कुल एक स्वप्न के भांति ही है कि जैसे उन्होंने स्वप्न देखा, उन स्वप्न में हम लोग कैरेक्टर, हम लोग स्वप्न दे रहे उसमें आप लोग कैरेक्टर, आपके स्वप्न कोई और कैरेक्टर. और वही उसको आगे चल के आएगा तो बताते हैं कि कैसे वो डेथ होता है, तो डेथ के वक्त जो विचार होता है उसी को, जो अतृप्त इच्छाएं होती है, उस इच्छा को पकड़ के ही तुम नेक्स्ट जन्म माने नेक्स्ट ड्रीम आपका चालू हो जाता है. आपके ड्रीम में जो चाहिए वो कैरेक्टर्स आ जाते हैं, आपके ड्रीम में चाहिए वो ब्रह्मांड बन जाता है आपके लिए. बस आप खत्म, ब्रह्मांड भी खत्म. और ये प्रक्रिया होने के लिए कितना टाइम लगता है, तो बोलते जो सृष्टि है उसके पर्सपेक्टिव से देखे तो जस्ट वो बुद्धि की बात, अपने को लगता है 100 साल हो गए, 80 साल हो गए, उसके पर्सपेक्टिव से देखो कुछ भी नहीं. इट्स जस्ट लाइक अ बबल पॉप अप इन द ओशन. नो, तो इट इज वेरी ब्यूटीफुल थिंग. नो, ये जितना और डीप में जाएंगे उतना और डीप. तो जब लीला सरस्वती प्रकरण की कहानी आएगा ना, और थोड़ा डेप्थ में जाते हैं. दिस जस्ट माय व्यू पॉइंट. यदि आप कुछ बात करना चाहते हैं तो मैं किसी को रोकूंगा नहीं, आप जरूर बात कर सकते हैं. जो संजय जी ने यहाँ पे एक टॉपिक दिया है हमको, उसके बारे में. संजय जी आप ही खुद ही बताएं, आप व्हाट डू यू से, एंड देन वी विल ओपन अप फॉर एवरीबॉडी की व्हाट दे से अबाउट. हाँ, और आजकल एक अलग और हमारे साथ प्रैक्टिकल हो रहा है. हमें एक लॉजिकली सोचने की एक आदत लग गई है. अभी हम जब सोचते हैं ना, तो एक कहीं से विषय शुरू हो जाता है और वहां पे हम वहीं पे अटक जाते हैं और उसमें विचारों में गड़ते चलते हैं. बहुत बार ऐसा होता है, सामने वाला क्या बात कर रहा है समझ में भी नहीं आता, हमारा विचारों के एक अलग सब दुनिया वहीं पे बैठना शुरू हो जाती है. मतलब ये विचारों की जो श्रृंखला शुरू हुई है, अभी बहुत सारे अलग अलग एक्सपीरियंस आ रहे हैं, क्योंकि हमारा खुद का एक अलग सा विश्व हमने बना लिया है. और बातें करते करते हम किसी ख्यालों में ऐसे ही निकल जाते हैं आगे. लॉजिकली आगे चलते हैं, बस ये समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है, लेकिन होता है बार बार. कभी कभी आपकी बात चलती है और कहीं ना आपका एक सेंटेंस आ जाता है, वो सेंटेंस पकड़ के
लॉजिकली शुरू हो जाता है, आपके आगे के सेंटेंस सुनना बाकी रह जाता है, लेकिन कंटिन्यू हो जाता है। ये वो अभी सीखने पर हमारे साथ ये प्रॉब्लम होने लगा है। नहीं तो ये तो मन का स्वभाव है। आज का जो वशिष्ठ का जो है ना बुक पढ़ेंगे ना, एग्जैक्टली यही बात जो संजय जी ने बात बताई ना यहाँ पे, एग्जैक्टली यही बात बताई है यहाँ पे, कि जो मन का जो स्वभाव है ना, कैसे वो मोह में अटक जाता है, कैसे वो इमोशंस में अटक जाता है, कैसे वही मन जो होता है वो काम में फंस जाता है, वही मन कैसे कर्मों में फंस जाता है, वही मन कैसे ही अपना अपना इमेजिनेशन लॉजिकल में फंस जाता है। बोलते यही मन जो है ना अपने आप को डिटोरिएट कर सकता है, पाव ऐसे बोलते दो धारी तलवार की तरह, वही तलवार काट भी सकती है और वही तलवार आपको बचा भी सकती है, प्रोटेक्ट भी कर सकती है। तो बोलते यही मन की जो स्थिति है ना, इसी में वही कैपेबिलिटी है कि अपने जो उत्कर्ष जो स्थिति है, नो द हाईएस्ट एग्जिस्टेंस के जो चैतन्य स्वरूप है, उसमें भी मन ही आपको लेके जा सकता है। मन के माध्यम से ही आप वहां पे जा सकते हो, लेकिन कैसे? मन से ही मन को ही अमन करके, मन से ही मन को मार के, मन से ही मन का स्वीकार करके, मन से ही मन को ड्रॉप करके हम लोग उस स्थिति में जा सकते। ऐसा भी बोला गया, मैंने पढ़ा था, आज बताया भी गया। यदि आप देखेंगे ना कुछ पेज पे, ये एग्जैक्टली आपने जो बात बोली ना, वही वहां पे डिटेल में विस्तार से यहाँ पे बताई गई है। तो हाँ, ऐसा ही है मन। मन इज लाइक दैट, वो चंचल है, भागते रहता है इधर उधर, एक जगह पे स्थिर नहीं होता है। कब कौन सी चीज कहाँ पे इमेजिन कर ले, इसका कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। देयर इज नो, उसका कोई त्याला बूड नहीं है म्हणतात। इट इज लाइक दैट, दैट इज व्हाट माइंड इज लाइक दैट। नहीं, पहले एक विचारों की अलग सी श्रृंखला चलती थी, वो जो अभी का इमेजिनेशन, अभी का प्रैक्टिकल का चलता था। कोई ख्याल आते थे तो प्रैक्टिकल के आते थे, लेकिन अभी ये जो तत्वज्ञान है, जो हम फिलोसॉफी सुन रहे हैं, जो तर्क सुन रहे हैं, उसमें बहता चलता है और उसमें अटकता है। एक अगर आपसे बात सुन रहा हूं मैं, चलते चलते आपकी एक सेंटेंस ऐसा आ जाता है कि मैं उसमें सोचने लगता हूँ और उसके विचारों में खो जाता हूँ, और कंटिन्यू आगे का चलता है तो वो अलग, आपका चलता है वो समझ में नहीं आता, और अपने विचारों की श्रृंखला अलग से शुरू हो जाती है। विचारों में विचार, स्वप्न में सपना, ये शुरू हो जाता है एक्चुअल। That is judgment. You are being judgmental. You are being analytical. That is what you call. It comes from the intellect. थ्री टाइप्स ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ लिसनिंग में क्या बोला है? पहला जो सुनते हैं, बुद्धिमत्ता पूर्वक सुनते हैं। बुद्धिमत्ता पूर्वक सुनते हैं तो क्या होता है? यदि अंदर से हाँ आ गया तो हम लोग एग्री करते हैं, अंदर से ना आ गया तो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं है। तो यही बोला ना कि ये दृश्य जगत क्या है? असत्य है। अंदर से ऐसा अनुभव ही नहीं है तो बोलते हैं अरे यार ये क्या बोल रहा है यार, क्या बकवास कर रहा है। इट जस्ट एक्सप्रेशन, यू नो, दैट कम्स नो। तो ऐसे जो बुद्धिमत्ता पूर्वक जब हम सुनते हैं तो उसमें कोई सीख नहीं, बिकॉज व्हाट अल्टीमेटली आप 1 घंटा कुछ हुआ तो आउटपुट क्या निकलेगा? आपने जो एग्री किया, यस 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 बोला इंटेलेक्चुअली, वो तो आप जानते ही थे, ऑलरेडी जानते थे। और जिसको आपने मना किया, रिजेक्ट किया, तो आपने फिर सुना ही नहीं, उसको ये नहीं कर रहा है। हाँ, दिस नॉट एग्जैक्टली व्हाट संजय जी की जो स्थिति और इससे मत रिलेट करना, दोनों चीजें अलग अलग है, मैं अलग चीज बात कर रहा हूँ। तो क्या होता है, कुछ सीखने को ही नहीं मिलता है फिर। देन दूसरा टाइप का जो लिसनिंग होता है वो कौन सा होता है? क्या आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स में आता है, इसलिए बोलते बार बार आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स करो। ऑनलाइन ब्रेथ मेडिटेशन वर्कशॉप में तो होता नहीं, 6 दिन का जब होता है उसमें हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। तो क्या बोलते हैं, दूसरा इमोशनल लिसनिंग होता है। इमोशनल लिसनिंग इज व्हाट? आपने गए, मूवी देखा, उसने कुछ बोला, कुछ डायलॉग, कुछ तो हुआ, आपने इमोशनली बहुत पसंद आ गया आपको, घर में आगे बोलते कैसा था मूवी? अरे क्या बढ़िया मूवी था, बोलते क्या मस्त था मूवी। अरे क्या था? अरे कुछ डायलॉग याद ही नहीं है, कुछ भी याद नहीं, बट क्या था, मस्त था बहुत। नो एक्सप्रेशन आ रहा है, भावनाएं व्यक्त हो रही है, बट क्या था पता नहीं है, बिकॉज वो इमोशनल लिसनिंग था। यू जस्ट लिसन टू इट इमोशनली, सेड वाह वाह, व्हाट डिड यू लिसन? नॉट एबल टू स्पीक वन वर्ड अबाउट इट। इमोशनल लिसनिंग कर लिया, दैट इज अ सेकंड। बोलते दोनों भी इमोशन, दोनों भी लिसनिंग से कुछ जाता नहीं अंदर। लिसनिंग कैसे करना चाहिए? प्रेफुल, पूरा अटेंटिव, पूरा फोकस, पूरा क्लीन स्लेट करके, मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ, आई डोंट नो एनीथिंग, एंड फिर जाके बैठ जाओ कि जो भी सुनने को मिलेगा वही सत्य है, जो भी बोला जा गया है, जो वशिष्ठ मुनि ने बताया गया वही सत्य है। लॉजिक अप्लाई करोगे, खत्म। लॉजिक से तो बैठता ही नहीं है, लॉजिक तो है ही नहीं तैयार हुआ ऐसा। ये दृश्य जगत असत्य है तो लॉजिक तो तैयार ही नहीं उसके लिए।
नो, तो फिर खाली होके सुन लो। खाली होके सुनोगे तो फिर वो अटेंटिवनेस आ जाएगा। वीडियो चालू करके सुनो। मैं बोलता हूँ यहाँ पे आके, जैसे मैं यतीम के सामने बैठ जाता हूँ सुबह, तब ना मैं कुछ पेशाब करने के लिए जा सकता हूँ, ना कुछ कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं। आई एम जस्ट सिटिंग देयर, मेरे को बैठना ही है उधर, बट आई कैन नॉट डू एनीथिंग, मेरे को सुनना है। ऐसा नहीं कि मैं सुन रहा हूँ तो मेरा डे ड्रीमिंग हो नहीं सकता, हो सकता है, बट चांसेस बहुत कम होते हैं। और काशी भैया कहते हैं ना, उतनी तो सिद्धि आ गई है कि आप कैमरे के पीछे करते क्या हो ना, उतनी सिद्धि आ गई है, पता लग जाता है कि करते क्या हो। कैमरे के पीछे कैमरा ऑन करके सुनो, बहुत फर्क पड़ेगा। नो इट विल, हमारा मन ये ऐसा ही चंचल मन है, उसको लाओ ठिकाने पे, हो जाएगा। और जो बताया ना कि ये नॉलेज ही ऐसा है कि एक विचार क्या गया, सेंटेंस क्या गया, उसके ऊपर पीएचडी कर सकता है इंसान। तो जो संजय जी बोल रहे विचार की श्रृंखला चालू हो जाती है, बहुत स्वाभाविक है संजय जी, बहुत ही स्वाभाविक है। आपके साथ नहीं, जब यतीम बोलता है मेरे साथ भी होता है। आपने देखा होगा ना, कभी कभी यतीम कुछ बोलता है, एक वर्ड शब्द बोलता है और मैं कुछ लगने लगता हूँ, आई गो टू गूगल एंड स्टार्ट सर्चिंग द थिंग्स। एग्जैक्टली सेम थिंग होता है मेरे साथ भी। तो डोंट थिंक दैट एज अ गलत हो रहा है, कुछ नहीं, गलत वलत कुछ नहीं है। हाँ ऐसा होता है, बस अवेयरनेस है। और यदि जितना अवॉइड कर सको उतना करो, फिर दैट्स गुड, देन यू विल बी मोर अटेंटिव। ये हम लोग कर सकते हैं, हमारे सबके लिए ये ज्ञान है। दूसरा एक चीज मैं यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ कि जो ये सब चल रहा है ना, जो कुछ भी हम लोग सुन रहे हैं उसको तर्क के हिसाब से लॉजिकली कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब लेफ्ट ब्रेन का काम होता है। जो अपना लेफ्ट ब्रेन होता है ना, इट्स ऑल हैपनिंग देयर। लेकिन गुरुदेव बोलते हैं कि तुम्हें अगर होलिस्टिक तुम्हें बनना है, हाँ, अगर तुम्हें अपनी पर्सनालिटी को पूरी तरह से डेवलप करना है इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, तो आपको सिर्फ ये करके नहीं चलेगा, यू गॉट टू यूज दिस आल्सो। ये बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि you use this also. What is this? That is the right side of the brain. What is the right side of the brain? जहाँ पे लॉजिक की कोई जरूरत नहीं होती है। जो चित्रकार चित्र बनाता है वहां पे कोई लॉजिक नहीं होता है। जो म्यूजिक चलता है उससे जो हमें आनंद मिलता है, उसमें हम लोग खो जाते हैं, रममाण हो जाते हैं, बोलते ही है रममाण, रममाण हो गए माने खो गए, उसमें लॉजिक की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसे एक्टिविटीज जहाँ पे लॉजिक की कोई जरूरत नहीं है, बोलते ऐसी एक्टिविटीज को भी अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। सत्संग में क्या करते हैं, लॉजिक में तो फिट नहीं बैठता है, अरे ओम नमः शिवाय एक बार बोल दिया बस हो गया, डजंट फिट इनटू लॉजिक, बट बोलते ओम नमः शिवाय ओम नमः, वही चीज बार बार रट्टा मारते, लॉजिक में बैठता नहीं है, लेकिन राइट ब्रेन करता है उस एक्टिविटी को, तो एक अलग ही स्पेस। और एक नहीं, जो हम लोग जो अलग अलग है, भी ब्रह्मांड की बात हुई, मेरा मन अलग, संजय जी का मन अलग कुछ और सोच रहा है, सत्संग में ऐसा होता है क्या? सत्संग में एवरीबडी सिंगिंग ओनली द सेम ट्यून, सारों का कॉन्शियसनेस और समष्टि के कॉन्शियसनेस के साथ एक रूप होता है, वो शिव तत्व में विलीन होने लगते हैं, एक ही कॉन्शियसनेस, उसका अनुभव आता है। ये प्रक्रिया है। तो बोलते दोनों यूज करो, लेफ्ट ब्रेन भी यूज करो, योग शिष्ट भी पढ़ो, और बोलते सत्संग भी करो, कुछ गाने गाओ, मस्त आनंद। जैसे अभी संगीता जी ने देखा ना एक अलग रूप, अरे क्या सीरियसली सब चल रहा है, मस्त हो जाओ, आनंद में रहो, खुशी खुशी हंसो, ये भी जरूरी है, दोनों भी जरूरी है। जहाँ पे जिस चीज की जरूरत है वहां पे उसको यूज करो। गुरुदेव कभी गहरा ज्ञान देते, गुड़ ज्ञान देते, कभी मुस्कुराते, कभी मजाक उड़ाते, एवरीथिंग इज देयर, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, यूज इट, बी विद दैट। जो क्षण जैसा है उसको ऐसे ही जियो, है ना। The best thing is keep on dancing. That is the best thing. I think so. That is the thing. Absolutely. Be grounded और दूसरे पैर उठा के अपना बैठ के डांस करो। ना की तरफ बंद करो। See, sometimes what happens, we have our own patterns, we have our own concepts, and they are so rigid. कि सामने वाला कुछ भी बोलेगा ना, you say that, you don't know what I'm going through, right? This is what happens actually. But to dissolve all that, that is again, पत्थर पे वो लकीर है सब. That is what it is. If you see that, उसमें दूसरे का absorption आएगा ही नहीं, because you yourself are so full with everything. How can you absorb something else then? That time you don't listen. It just goes off because your concepts are very sharp. So we need to dissolve that and see the things as they are without any judgment. This is what I'm talking you from my, I'll tell you my experience.
My master used to always tell me, come on, talk about judgment. I said, now what am I going to talk about judgment? But I was already in that. So she used to always tell me, come on, talk about judgment. I couldn't never talk. This is what I'm talking here. It's not suddenly I've come and I've been here. It's years I've been in that, you know. So I should never, because I was in the judgment. I was in that other things, you know. My conceptions were also very, very, very rigid. I'm a very rigid person, actually. If it works with me, it works. Otherwise, doesn't work that way. But I need to learn. I have been learning all this my life. So learning, dropping, picking up something, applying something to yourself, which is you're finding good. You know, all these things evolve again. Yeah. So कुछ लेते हैं, कुछ छोड़ते हैं ना. दोनों बातें होती है. तब हम आगे, अभी हम स्विम करते तो क्या करते हैं, आगे वाले पानी को ऐसे करेंगे तो पीछे छूटेगा तो हम आगे जाएंगे. Isn't it? Have you noted that? नहीं तो स्विम ही नहीं कर पाएंगे ना, बिल्कुल. So if you know, if you want to learn swimming, you will have to let go some things and then go ahead, and then new water comes, you just let go that also, then you move ahead. So that is what it is, you know. Keep rowing your boat. That it is again. If you get stuck anywhere, you can't. Again, you keep on rowing your boat. Okay, it's okay. Now what? Next what? Next what? So next movement is a next movement. एक और बात एक और बात आती है, जब हम कोई सब्जेक्ट अंडरस्टैंड करने के आगे बढ़ते हैं तो उसमें विचार करने पड़ता है ना. वो विचार हमें डिस्टर्ब करता है. वो विचार और एक एक अलग परसिप्ट में लेके जाता है. वो बात कर रहा हूँ मैं. और उसमें क्या होता है, अभी एक योग वशिष्ठ में एक वाक्य है, अगर तुम्हारे बुद्धि को नहीं पड़ता है और कोई आपको ब्रह्मदेव भी बोले तो उस पर विश्वास मत करना. एक योग वशिष्ठ में ही एक टॉपिक पे बात चलेगी, वो इसमें उसका पेज नंबर याद नहीं है, लेकिन योग वशिष्ठ. संजय जी, यू आर एब्सोल्युटली राइट. वो बोलते हैं ना, इसमें 3 चीजों को बताया गया इम्पोर्टेंस. तो पहला चीज जो बताया गया इम्पोर्टेंस इज दैट द शास्त्र, द गुरु वचन जो आया हुआ है, द नॉलेज दैट कम्स फ्रॉम सम सोर्स, दैट इज वन सोर्स दैट यू गॉट टू बिलीव इन. द सेकंड थिंग दे सेड दैट कि किसके ऊपर बिलीव करो, तो बोलते हैं कि सेल्फ एफर्ट के ऊपर बिलीव करो. अपना प्रयत्न है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके ऊपर बिलीव करो. एंड देन द थर्ड थिंग इज दैट कि अपना स्वानुभव क्या है, दैट इज व्हाट यू आर रेफरिंग टू. आपका अनुभव क्या है, does that apply to you or not? Doesn't matter, that sentence might come from Bhagavad Gita or it might come from Yoga Shishta. So what? Does that apply to you in this situation? Yes or no? That is where the स्वानुभव, that is, मैंने अभी 3-4 सीजन हो गए, हमेशा से मैं एक ही बात कहता आया हूँ कि कॉन्टेक्स्ट देखो. कॉन्टेक्स्ट माने आपका देखो कॉन्टेक्स्ट, अभी इस कॉन्टेक्स्ट में एप्लीकेबल है क्या आपके लिए. यदि है तो यूज करो, नहीं एप्लीकेबल है तो छोड़ो उसको. फिर वो ब्रह्मदेव क्यों ना आके बोले, फिर वो सोमेश्वर हो या कोई भी हो, यतीन हो या कोई भी हो, अरे दैट्स दैट एप्लीकेबल टू यू राइट नाउ, इज दैट फिट इनटू योर कॉन्टेक्स्ट और नॉट. वो कॉन्टेक्स्ट वहां पे स्वानुभव आ जाता है. माने बात वही हो जाती है कि भाई आप स्टूडेंट हो, आपका स्टूडेंट है, आपका एग्जाम आ रहा है, आपको स्टूडेंट हो, एज एग्जाम आप पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन कोई आके बोलता है चल यार क्रिकेट खेलने चलते. हाँ, आप क्रिकेट खेलने चलने जाओगे तो खत्म, यू आर गॉन. आपने अपना स्वानुभव को अप्लाई नहीं किया, कॉन्टेक्स्ट देखा नहीं कि राइट नाउ मेरे लिए मेरी पढ़ाई जरूरी है. नॉट दैट क्रिकेट, इट माइट बी वेरी इंटरेस्टिंग, यस इट्स अ नाइस स्पोर्ट, आई एम नॉट सेइंग क्रिकेट इज बैड. Cricket is a very good sports. If you play the cricket, it's fantastic, but not right now. I'm sitting for the meditation. Yes, gulab jamun, I love gulab jamun, but not right now. Okay, fine. Sex, not right now. Okay, what else? Not right now. Kuch bhi ho, not right now. I just want to sit and let go of everything. I just want to meditate. Not right now. ये not right now वाली जो बात है ना, that depends upon the स्वानुभव, that depends upon the context, that depends upon whether that information that we listen from all these Yoga Shishta or from Bhagavad Gita or from everywhere, does that translate into your own knowledge at that point of time. Depends upon are you applying the right information to make that as a knowledge. मैंने वो एग्जाम्पल भी दिया था कि कोई जेल में बैठा हुआ है, उस जाके गीता सुनाओ,
बोलते अरे तुमने तो ऐसे ही कर्म किए, गीता में ही लिखा है जैसे कर्म करेगा वैसे फल मिलेगा। भगवान ऐसे बोला है, कृष्ण ने ही बोला है, भगवान ने गीता में ही लिखा है। तो भुगत मर, फिर ऐसे बोलोगे, ऐसे बच्चों का वहां पे प्रयोग करोगे, क्या बेचारा हो गया, फिर करेगा क्या? वो ज्ञान हो गया उसके लिए? वो कोई ज्ञान नहीं है उसके लिए, भले वो गीता के वचन क्यों ना हो, इट इज नॉट अ ज्ञान फॉर हिम। वहां पे जाके उसको सांत्वना दो, उसको थोड़ा प्यार से बात करो उसके साथ, तो बताओ कि ये समय भी बदल जाएगा, दिस विल आल्सो पास। गीता का हर एक चैप्टर कॉन्ट्राडिक्ट करता है अपने आप से, खुद को ही कॉन्ट्राडिक्ट करता है, इससे उससे नए ज्ञान बताते हैं। तो बोले वो कॉन्टेक्स्ट देखो, वो जरूरी है बहुत। मतलब ये बहुत लंबी चौड़ी बात हो गई बताने की, लेकिन अपने पास ऐसे शख्स है कुसुमताई जो सारी चीजों को ना संक्षिप्त रूप में अपने को समझाते हैं, बताते हैं। कुसुमताई, आप काफी देर से सुन रहे हैं हमें, कृपया आप सॉरी टू डिस्टर्ब यू सोमेश्वर जी। लगा मुझे वो बोलिए। आप और यतीन जी गुलाब जामुन का इतना एग्जाम्पल देते हैं ना, तो मैं परसों हॉल में गई थी नेमिंग सेरेमनी के लिए, तो मुझे वो पूरे गुलाब जामुन में आप सब लोग दिखाई दे रहे थे। दोनों के लिए ये जवाबदार है संगीता जी, ये हमें बैठ के ना गुलाब जामुन बना के गुलाब जामुन यतीन जी भी हर रोज बोलते हैं गुलाब जामुन गुलाब जामुन। After this session, actually after this session, I was about to tell you, you know, Someshwarji, just give me 2 minutes to talk to you. And I would love to invite all of you on a Saturday or a Sunday, whenever Someshwarji agrees, to have that gulab jamun with me over here in my house. So do you all agree? How many of you all agree? Come on, Sanjay ji, wherever you are in Khandala or anything, you have to come. Not only gulab jamun, we will have a lunch together. Yeah. So I'm a very good cook. Yes. Oh, that's you can great. ask Someshwar ji. Gawah hai, gawah hai. I would really That's great. love you to come and be with me, and we are going to plan it out. It is not just I'm saying, after this session we are going to finalize कि Saturday करेंगे क्या Sunday, नहीं तो दोनों दिन कर सकते हैं. I don't mind. So since it is a weekend, you know, like everybody will be free from their work and all, we would really love to. What are you saying, Someshwar ji? Gulab jamun हो जाए? अभी तो मैं कुसुमताई को सुनने के मूड में, कुसुमताई आप बोलिए। तो इसके बाद की बात है, तब तक सब अपना यस माइंड करके रेडी करो, है ना? कुसुम जी कुछ ऐसा बोलिए कि सब यस ही कर देंगे आपके साथ साथ। बिल्कुल। यस यस यस। ये बहुत सभी ने आप बहुत अच्छा बोला है, बताया है, डिटेल्स में बहुत बताया है। तो मैं उसमें जस्ट ऐड तो नहीं बोल सकते, बट करना चाहती हूँ कि जो हम ये बोलते हैं आत्मन ब्रह्मन वो वगैरह, तो वो सब एक वर्ड्स है, बट सिंपल बताती हूँ कि दैट ब्रह्मन आत्मन इट dwells इन आवर वेब ऑफ थॉट्स ओनली, तो उसी में वो रहता है। एंड वही थॉट्स, वही चित्त, वही माइंड दैट बिकम्स आवर, अपना एनिमी भी बन सकता है या मित्र भी, दोनों बन सकते हैं। तो इसी में, और वो हमें हायर लेवल की तरफ भी लेके जा सकते। तो ये इसी के इसमें आधार में गीता में एक बताया है, वो बताता हूँ। मय्ये व मन आधस्त्व मयि बुद्धि निवेशय और निवसिष्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वं न संशयः, कि आपका मन मुझे दे दो, ऐसे वो भगवान श्री कृष्ण जो बोलते हैं, बुद्धि और मन, तो मैं उसमें कुछ अच्छा डाल दूंगा, एंड देन इट विल टेक यू टू द हायर लेवल। बस इतना ही, धन्यवाद। वही मन जो सताता है, वही मन ज्योत स्वरूप बन जाता है। दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन। वही मन हमको देखो नीचे गिराता रहता है। अब वही मन कैसे बोलते हैं, बस जल्दी 7 o'clock आई हैव टू जस्ट गो स्टार्ट द गुरु पूजा। वही मन है ना, है ना? आज हमको बाहर नहीं लेके जाता है, लेकिन हमको यहाँ लेके आता है। तो वही मन ज्योत स्वरूप बन जाता है। एंड you see Gurudev also says this, no, in the meditations, कि शरीर, what he says, sharir is like a candle and mind is like a glow. Exactly that way, if you picturize that. And I'll tell you one more thing, Sanjay ji, when we hear all this Yoga Vasishtha and Bhagavad Gita, no, always it is there कि your life should be a Bhagavad Gita.
मीन्स वो ट्रांसफॉर्मेशन जो अर्जुन को दिया कृष्ण ने, वो सारा ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हारे में आके अपने में देके, और हमारा जीवन जो है वो भगवत गीता पे बेस्ड हो जाए. मतलब यू कैन राइट अ भगवत गीता ऑन योर लाइफ. इट शुड बी दैट वे. So it is not a Bhagavad Gita for Krishna and Arjun. It is for me. So the same thing is for Yog Vasisht. Who is that Rama? I think it is me only, because I am surrounded with all those thoughts and clouds and all. So it all has to go vanish, and the clear sky has to be seen. That is what I feel when I sit here. So that is the thing actually. If you see that, no, automatically who chata hai, because whatever again you think, it happens. So you are the Brahma. So if you don't want the thoughts, it won't come to you. So simple it is, isn't it? I feel that. So you go to the end and you read Yog Vasisht. That is what I feel. You go to your be centered, go to your Atman, get established there, and then you read Yog Vasisht. It is very easy for you then. You will enjoy that ride. नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल नहीं है अभी. हाँ, हर नेगेटिव कोई योग वशिष्ठ में और भगवत गीता इसमें घूम रहा है अभी. कोई चांस ही नहीं उसमें अभी, कुछ भी नहीं. अब ये चलता है बस, ये ऐसा हुआ वो ऐसा, पूरा योग वशिष्ठ ही चल रहा है अभी. दूसरा कुछ आप है ही नहीं. सेलिब्रेट कर स्पेस ही लो. नहीं. आप सेलिब्रेशंस में रहो. चलने दो ना, क्या करना है. चर्निंग हो रहा है ना, तो ठीक है. द प्रोसेसिंग इज गोइंग ऑन. अगेन द फिल्ट्रेशंस आर रिक्वायर्ड. सो इट्स जस्ट गोइंग ऑन. इट्स ओके. Just be with that. That state, every state has its own importance, na, isn't it? So let it be. ठीक है ना. चलो. Okay. So anything else? We'll take a pause here. आज का सत्र हम लोग यहाँ पे स्वल्प विराम लेते रुक जाते हैं. But I have a question. I mean, I need to share, please, with all of you. And I'm inviting all of you, please, to be on a Saturday. Saturday, shall we pick Saturday, Someshwarji? Sundays, everybody will be busy in their own this. No? Saturday, lunch with me. And stop this live and then we'll continue. Yeah. Please, I'm sorry for that. आज का यह सत्र हम लोग यहाँ पे ही समापन करते हैं, रुक जाते हैं, स्वल्प विराम लेते हैं, ताकि पुनः एक बार हम लोग मिल सकें. जय गुरुदेव.